Bismillahirrahmanirrahim. Rabashrali sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. O Allah, open my heart and ease my task for me and remove the impediments from my speech so that they may understand what I say. Ameen. अच्छा जी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आज का हमारा ऑब्वियसली सेशन है टैक्सेशन, स्पेसिफिकली आपकी टैक्सेशन फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स के हवाले से. कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे ट्रेन, or the best way is to begin by introducing each other. So before I ask you to introduce yourselves, I'll quickly introduce myself and our firm. I hope Usman Saab has already given some preliminaries. No, nothing. Okay, I'm representing Millennium Law and Corporate Company, MLCC. It happens to be the pioneer legal and accounting firm in Pakistan. Basically, the concept in Pakistan, in fact, this part of the world, is that we normally either have the legal firms or the accounting firms. It's not like all solutions under one roof. That is contrary to the practice mostly in the Europe or the States, etc., where the concept is on the facilitation of the end user, the customer, the business, and all solutions are under one roof. So we took that initiative. The firm has a history of 38 years plus, and this transformation happened, I think, roughly 14 years ago, the accounting legal firm. And we basically have 4 partners, 2 legal partners and 2 accounting partners. The legal partners, one of them has been the ex-Deputy Attorney General Pakistan. The other has been also a very senior advocate, having served on senior positions like legal advisor to various government departments such as the Federal Land Commission, etc. And then we have 2 accounting partners on the accounting side. I'm representing the taxation and corporate services, for which I'm honored to be the managing partner. Professionally, I'm a fellow chartered accountant, fellow chartered certified accountant, CPFA, CFA charter holder, BFP, and a few other things. It becomes a bit difficult speaking about yourself, but I'm sure you can Google, or Usman Saab would be kind enough to pass our website link if that's not too much of a trouble. Furthermore, my graduation has been in applied accounting from Oxford, and in addition to that, I have specializations in AML, fraud risk management, and obviously taxation and corporate services. For those of you who do like to read, I do write occasionally on these technical subjects. I hope they are not too boring for you, coming from a technical background in various English language dailies. Links are also available on the websites, and you can always search Google Baba. Just put in my name, Umar Zahir Mir, you'll get a lot of that. I'm also honored to be serving on various committees of Lahore Tax Bar, Lahore Chamber of Commerce and Industry, heading the MNP Member Network Panel and Taxation Committee of ACCA, also honored to be representing Pakistan on the Global Tax Forum. So that's a brief intro of myself. Now we'll start, I think, with you, since you were the first who started speaking before the session. So you'll quickly introduce yourself, but the minimum I expect is at least your name, your educational background, a bit about your professional journey, and anything else you like to add. So over to you. So my name is Mohammed Arshad, and I did my graduation in computer sciences from Fast University Lahore campus. Very good. And it's been 15 years, and I'm in the industry working on different software solutions. So in the Allied, I'm working as a tier 2 consultant. And how long since you joined Allied? I have been in Allied since 2019. 2019. Okay, great. Good to know you, Arshad sir. Over to you. My name is Navizur Rahman Shuktai. I did my master's in computer sciences from University of Central Punjab. I have like 23 years of experience. 23? Yeah. Okay, mashallah. Various international exposures and working directly with the financial institutes like Citibank, Standard Chartered Bank. And I'm working in Allied for the last 3 years as a test lead on the quality assurance department. Okay, quite a jump, industry-wise, from banking to purely IT. How did that happen? No, I was in purely IT during my banking, and You were working in the IT departments of the banks. Yeah. Okay. Internet banking, and Okay. mobile applications, stuff like that.
So if I may quickly ask, how's the difference if you compare both roles? Definitely more liberty, autonomy. So how you liking it? Working in abroad or in Pakistan? Yeah, yeah. Yeah, it's in abroad. You have to work like 8 hours a day. In Pakistan, you have to work like 4 hours a day. You know, Umar will be watching this recording. Yeah. Not me, Umar, that Umar. And Okay, great. there is a, I mean, you have to work like from with Indians and with Indonesians, Compete with with them. Malaysians. You have multiple set of culture over there. So But a sense of fulfillment you are contributing to your national economy, your country. Okay, great, Chuktai sir. My name is Samad Ali, and I've done my graduation in 2018, and I've been with the Knight since 2022 last year, and now I am tier 2 consultant and working as a principal software engineer. And currently I am working on a aviation project, which is based on Canada, so I'm very enjoying the work. Fantastic, thank you. My name is Sujal Ahmed. I did BS Software Engineering from International Islamic University, and IIU Islamabad. Yes. Okay. I have 9 years of experience. It's been 2 years with ILAC. Yes. Okay, and where were you working before? Which sector? Actually, I've been working in different industries, like mostly purely in IT. In the gaming industry as well, e-commerce, and different solutions for the multiple clients around the world. Okay, that's great. Thank you. My name is Respect. Yeah. Yeah. My name is Shahid Iqbal, and I did my. And I demand respect. Yeah. Okay. Ji Shahid sir. I did my graduation in 2011 from FAST University, and I have been working as a mobile application developer and consultant as well. And I'm here in Allied Consultant from last 3-4 years. Okay. I'm just working. My area of expertise is mobile application development. Fantastic. Okay, one other thing. The purpose of communication is to understand each other. So we just started in English because Usman loves to speak in English with me. Other than that, there's no real language barrier here. I mean, just be up comfortable and no issue, whatever language you want to speak. So over to you. मेरा नाम अजीब सर है और मैंने मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से किया हुआ है एंड आई एम हियर एज अ लाइफ कंसल्टेंट सिंस 2011 Okay. and it's my second job experience and I'm enjoying here And when did you join the light? since 2011. I'm working And when did you start your career? back in 2010. Okay. So just after 1 year you came and you never left back. You never left or looked back. Great. MashaAllah. So how's the experience been at Allied? I think you are the senior most, at least till what we have seen in terms of Allied, the time spent at Allied. तो Allied को कैसा, अच्छा आगे और भी आ रहे हैं, ठीक है. तो Allied को कैसा आपने पाया? लाइफ को बहुत अच्छा इन टर्म्स ऑफ अगर आप वर्क एक्सपीरियंस या आपका एक काम करने का जो मेथडोलॉजी है वो बहुत अच्छी है मतलब ये कि कन्वेंशनल अप्रोच नहीं है या एक है जो दूसरे सॉफ्टवेयर से होती है और उस कन्वेंशनल अप्रोच को देखते हुए यहाँ पे काम करना बहुत ईजी भी है और काम डिलीवर भी आप 100% करते हैं. माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट. अब ये जो भाई साहब आपके पीछे छुपे हुए हैं, बिल्कुल छुप के बैठे हुए हैं. अस्सलाम वालेकुम. Is there for the camera? The अच्छा. video team. कोई नहीं, अपना तारुफ तो करा दें. My name is Yan. I recently joined Allied as marketing Okay. department. और उन्होंने कैमरा पकड़ा दिया आपको. नहीं सर अभी मैं हाँ, चलें, कोई बात नहीं. गुड जी. My name is Salman Nazir. I did my graduation from FAST, Lahore campus, and I have around 14 years of experience. माशाल्लाह. And I did work in different software houses, NetSol, Excel, and I joined Allied in 2019, and I'm working here as a tier 2. माशाल्लाह, great. My name is Jansir Khan, and I have done a master's from Government University in 2015. I started my career in 2009 with Coldly. I was part of
console team that was delivering leads and financing system at that time. Okay. And I joined Elite in 2011. Mhm. Since then, I'm in Elite. Which month? May. He's Which month? a few months senior. No, he said September, you said May. Then you are a few months senior. Congratulations, you just realized this now. You are actually a few months senior. May is before September. मुबारक हो आपको. Great. अच्छा जी. Okay, so my name is Soumya. I did my bachelor's in software engineering and master's in project management. I have total 5 years of experience in which I've spent 4 years in LI and working as a senior software engineer. Great. And I'm asking you to मैंने software engineering fast Lahore campus से किया और मैंने 2011 फास्ट छाया हुआ है अलाइड में. मेजॉरिटी. ये वैसे भी हम क्लास फेलो ही हैं. अच्छा अच्छा. ओके. Each year class fellows in like. ओके. फास्ट नहीं है हम्म. बहुत फास्ट 2011 फास्ट वाले बहुत फास्ट हैं. ठीक है. 2011 से मैं लाइन में हूँ. ओके. और आप भी 11 से हैं. किस महीने से? जून. तो आप इन बिटवीन हैं. आप सेकंड नहीं वो मई है. मई जून सितंबर. जी. दूसरी जॉब में मेरी से पहले मैं MTBC की मेडिकल ट्रांजैक्शन बिलिंग कंपनी इस्लामाबाद में जी जी. मैं वहाँ पे 1 साल जॉब किया उसके बाद मैं माशाल्लाह. बिलिंग कर सकता. चलें जी. ग्रेट. आज आपको एक फ़ायदा एडिशनल ये हो गया कि आपको पता लग गया एक दूसरे के बारे में कि कौन कितना सीनियर है और कब से ज्वाइन किया हो. इस टॉपिक पे बात ये अच्छा जी. चलें. नाउ दैट इज़ आउट ऑफ द वे एंड वी हैव अ गुड इंट्रो. तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं. आज का जो मकसद है वो ये है कि आपको एक अवेयरनेस दी जाए आपकी टैक्स लाइबिलिटीज़ के हवाले से और आप अंडरस्टैंड कर सकें कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, आपको क्या ट्रीटमेंट ये दे रहे हैं टैक्स वाइज और क्यों दे रहे हैं. तो आई गिव यू अ क्विक इंट्रो. आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल एक लेमैन टर्म में, ताकि आप बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें. उसके बाद इट विल बी ओपन फॉरम. कोई भी आपके जहन में सवाल हो आप पूछ सकते हैं. जस्ट सम ग्राउंड रूल्स, क्योंकि माशाल्लाह थोड़ी सी आबादी है हमारे पास और अगर सारे एक साथ बोलेंगे तो किसी की समझ नहीं आएगी. तो व्हेन विल ओपन द फॉरम फॉर क्वेश्चन आप जस्ट मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा कि आपका कोई क्वेश्चन है, तो 1 बाय 1 हम सबके क्वेश्चन आंसर करेंगे. इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आप में से किसी का भी सवाल अनआंसर्ड लेफ्ट ना हो. अच्छा जी. तो हम स्टार्ट करते हैं. आप बेसिकली आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अलाइड को और आप जो फॉल कर रहे हैं वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में एक सेक्शन है जिसको हम कहते हैं सेक्शन 153. उसका सब सेक्शन है 1531B जो डील करता है विद होल्डिंग टैक्स ऑन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. आप इसके अंदर फॉल करते हैं. बेसिकली 153 में 3 अलग कैटेगराइजेशन है. एक वो टैक्स है जो हम विद हेल्ड करते हैं प्रोविजन ऑफ गुड्स पे. एक आपका केस है जिसमें हम टैक्स विद हेल्ड करते हैं. कोई भी शख्स जो पेमेंट कर रहा है वो टैक्स विद होल्ड करता है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पे. और तीसरी चीज़ है जो है कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स जिनके ऊपर विद होल्ड किया जाता है. नेचुरली ये तो अंडरस्टैंडेबल है, आप कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट की टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन है. उसकी वो लेमैन टर्म नहीं है कि जी मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट अगर लिखा है लाइट के साथ तो मैं टैक्स वाइज भी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स में आ जाऊँगा. डजंट वर्क लाइक दैट. आपकी आसानी के लिए वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. उसकी एसेंस ये है कि बेसिकली समबॉडी हु इज़ प्रोवाइडिंग, आसान ज़ुबान एक कॉन्सेप्ट के लिए समझ लें कि डिफ्रेंसीशन के लिए इस तरह है कि आप गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें दोनों की इम्पोर्टेंस है. अब मिसाल के तौर पे कल को ये कह सकते हैं ना जी आईटी में भी अगर मैं अपनी हार्डवेयर प्रोवाइड करके यूज़ कर रहा हूँ और सर्विस दे रहा हूँ तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहिए. लेकिन आईटी में इन एसेंस आप अपना नॉलेज सेल कर रहे हैं, अपनी स्किल सेल कर रहे हैं, अपनी सर्विस है जो सेल कर रहे हैं. वो एक छोटा सा एलिमेंट है जो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा हार्डवेयर का, जो वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं. वो इस तरह नहीं है कि जैसे आपने एक मकान का ठेका दे दिया है कि ये कंस्ट्रक्ट करके तुमने मुझे देना है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है. तो आई होप ये एक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है. अच्छी चीज़ ये है कि ये आपके लिए वैसे ही बेस्ट एप्लीकेबल बनता है क्योंकि अगर आप
गुड्स तो आपसे रेलिवेंट ही नहीं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जाते तो आपका जो विद होल्डिंग टैक्स है वो बन जाता 8% इन केस यू आर फाइलर एंड 16% इन केस यू आर नॉट अ फाइलर। जबकि करंटली जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है 1531B, उसमें आईटी सेक्टर को स्पेशल एक रिड्यूस रेट मिला हुआ है कंपेयर टू अदर्स। बाकियों के लिए रेट तो ज़्यादा है, लेकिन जो आईटी के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं लाइक यू, उनके लिए रेट रिड्यूस है। पिछले साल तक ये 3% था फाइलर्स के लिए। इस साल गवर्नमेंट ने कहा, जैसे आपने कहा कि माशाल्लाह कंप्लाइंट भी है, कमा भी रहे हैं, तो ये क्यों बचे हुए हैं। तो लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 33%, 1/3 इजाफा की है, 4% आपका रेट हो गया फॉर फाइलर्स के लिए। एंड नेचुरली यू आर वेल अवेयर कि नॉन फाइलर्स के लिए ये 100% बढ़ जाता है, यानी कि 8% हो जाता है। तो आई एम श्योर कि आप सबको ये पता था। अगर नहीं भी पता था, जस्ट वेरी क्विकली शो ऑफ हैंड्स, आप में से कितने लोग फाइलर्स हैं? आई वॉज एक्सपेक्टिंग आप नहीं है, आप भी नहीं है। क्या बात है। अच्छा, लास्ट ईयर से मुराद 2021 है। ओके, तो अभी तो 2023 के फाइल होने हैं ना। और आपने कभी किया है या अभी एनटीएन भी नहीं बनवाया? चलें, आप दोनों लाजमी कर लें। इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्विकली फाइलर को भी डिस्कस कर लेते हैं। फाइलर का कॉन्सेप्ट जी बड़ा सादा है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। आपने बेसिकली अपनी जो टैक्स रिटर्न है, अपनी टैक्स रिटर्न आपने फ़ाइल करनी है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि लोग अक्सर इसको कंफ्यूज कर देते हैं विद द पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। फाइलर का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। फाइलर सिंपली कहता है कि आपने ड्यू डेट के अंदर एज़ पर द पैटर्न अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, एंड ऑफ स्टोरी, आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे चले जाएंगे, फाइलर हो जाएंगे। अगर आपने ड्यू डेट मिस की है फिर भी आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगराइजेशन, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, जो एप्लीकेबल फ़ाइन है वो आपने पे करना है और आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे चले जाएंगे। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जी पहले फरवरी में रिलीज़ होती थी, अब 1 मार्च को रिलीज़ होती है। और टैक्स ईयर क्योंकि पाकिस्तान में 1 जुलाई से 30 जून तक रन होता है, तो इफ़ेक्टिवली जो फाइलर है वो 1 साल पीछे चल रहा होता है। मिसाल के तौर पे आज हम बात कर रहे हैं 2023 के अंदर, और इस वक्त 2023 टैक्स ईयर जो कि 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 था, उसकी रिटर्नें अब फाइल होना शुरू हो गई हुई हैं। लेकिन अभी जो इस वक्त ATL चल रही है, जो 1 मार्च को आई थी, वो उन रिटर्नों की है जो टैक्स ईयर 2022 की फ़ाइल हुई थी, और ये चलेगी अगले साल फरवरी के एंड तक। अब जो हम रिटर्नें फ़ाइल कर रहे हैं, अगले साल 1 मार्च को नई ATL आ जाएगी और उसके अंदर फिर वो सारा डाटा होगा। अच्छा, नई ATL से मुराद है नए साल की, क्योंकि वैसे तो ATL हर हफ्ते अपडेट हो रही है। जैसे मैंने बताया, जिन लोगों ने नहीं फ़ाइल किया हुआ वो अपनी रिटर्न फ़ाइल करें। जैसे अगर आप दोनों हैं, आपकी रिटर्न फ़ाइल हो, थोड़ा सा फ़ाइन है, इंडिविजुअल का ज़्यादा नहीं है, वो आप पे करें तो अगले वीक की ATL में आपका नाम आ जाएगा। और उसका फ़ायदा ये होगा, ये जो उस्मान साहब आपका 8% टैक्स काट रहे हैं ना, वो आधा रह जाएगा, 4% कटेगा। ठीक है जी। तो दैट्स अ क्विक ओवरव्यू ऑफ वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। इसके हवाले से या जनरली आपकी टैक्स, पहले तो इसके हवाले से अगर आपके कोई सवाल आते हैं तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद फिर अदर कोई आप डिस्कस करना चाहे कर लीजिएगा। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? अच्छा, ये आ गया, मैंने कहा शायद सवाल आ रहे हैं जी। सर, अगर आप लगातार 5-6 साल से टैक्स फाइल कर रहे हैं, बीच में आप 1-2 साल मिस कर रहे हैं, तो आप सर निकल जाते हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से और फिर दोबारा ये ऐसे प्रोसीजर होता है कि एक दफ़ा आपने फाइल कर दिया, आपने हर साल लाजमी फाइल करना है? नहीं, ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। एनुअल बेसिस पे आपने अपनी टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करनी है, ATL लिस्ट हर साल आनी है। जिस साल की आपने फ़ाइल नहीं की, उस साल की ATL जब एक्टिव होगी, अनलेस के आप फाइल करें, और अगर डेट मिस कर गए हैं पेनल्टी पे करें, उस पूरे साल के लिए आप फाइलर नहीं रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैंने एक रिटर्न फाइल की है तो अब मैं ज़िंदगी भर फाइलर रहूँगा, वो हर टैक्स ईयर के लिए। एक और अहम चीज़ भी समझ लीजिए कि जब आपने NTN बनवा ली है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कुछ कमा रहे हैं या नहीं। खुदा न खास्ता आप बेरोज़गार हो गए हैं, आपने ब्रेक ले ली है, रिटर्न फाइल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नील रिटर्न जाए, इट डज़ नॉट मैटर। लाजमी नहीं है कि आप कुछ कमा रहे हो। इनफैक्ट हमारी मेजॉरिटी नहीं, अब कहना चाहिए बड़ी मटीरियल अमाउंट ऑफ रिटर्न्स नील जाती हैं, वो इसी पर्पज़ के लिए,
क्योंकि हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि रिटर्न शायद मुझे तब फाइल करनी है अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ, बल्कि अब तो एक और मिसकॉन्सेप्शन सैलरीड और इवन हमारे आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है कि मेरा तो टैक्स कट जाता है तो मुझे रिटर्न फाइल करने की क्या ज़रूरत है। रिटर्न का कोई ताल्लुक इससे नहीं है कि आपका टैक्स कट रहा है या नहीं कट रहा, या आप फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप रिक्वायर्ड हैं टू फाइल रिटर्न, और अगर आपने एनटीएन ले लिया है तो आप लाजमी रिक्वायर्ड हैं, फिर आपने रिटर्न लाजमी फाइल करनी है। एंड ऑफ स्टोरी। जी, एक मेरा भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। तो आपने हाथ नहीं शो किया। अच्छा, एट टाइम्स मैं जब इनका चेक करता हूँ, बिफोर मेकिंग द पेमेंट्स मैं चेक करता हूँ कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है या नहीं है। तो जिन्होंने ड्यू डेट में सबमिट नहीं कराई होती, सो उनको वो नॉन एक्टिव शो करा होता है, सो देन दे पे द फाइन और वो वापस एक्टिव पेयर लिस्ट में आ जाता है। तो ये साल में कितनी दफ़ा होता है? कुछ सर्टेन मंथ्स हैं जिसमें एवरी कर वीक, देते हैं? एवरी वीक उस्मान, हर मंडे को पिछले सारे वीक का डाटा रिवाइज होके आ जाता है। यानी ये जितनी रिटर्न इस वीक में सबमिट करेंगे, ओवर द वीकेंड ये अपडेट होगा। मंडे को जब आप एटीएल खोलोगे उसमें वो अपडेट हुए होंगे, और ये हर वीक होता है। सो ये भी मैंने नोट किया कि वंस उन्होंने फाइन पे कर दिया और वो एक्टिव हो गए, सो बिफोर द क्लोज ऑफ दैट टैक्स ईयर वो दोबारा भी नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में डाल दिए जाते हैं, तो फिर से उनको फाइन पे करना। वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, उसकी वजह ये है, जैसे मैंने अभी बताया, जो नेचर है इसकी बाइफ्रोकेशन की टैक्स ईयर की। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने लेट से दिसंबर में अपनी जाके रिटर्न फाइल की, ठीक है, वो आ गया एटीएल में, लेकिन 1 मार्च को तो उस टैक्स ईयर की एटीएल आ जानी है जिसकी शायद उसने नहीं फाइल की। चले मैं मिसाल दे के समझाता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा। अभी हम 2023 साल में बैठे हैं, जो कि टैक्स ईयर 2024 बनता है। क्लियर? इस वक्त रिटर्नें 2023 टैक्स ईयर की फाइल हो रही हैं, लेकिन जो एटीएल चल रही है वो 2022 की रिटर्नों की बेसिस पे चल रही है, ठीक है। अब लेट से इस साल दिसंबर में एक बंदा आपको ज्वाइन करता है, वो एटीएल पे नहीं है, आप उसे समझाते हो, चलो हमें रेफ़र कर देते हो, हम उसको गाइड करके उसका फ़ाइल कर देते हैं, हो जाता है। अब आप उसकी पेमेंट प्रोसेस करते हो, दिसंबर की जाती है फाइलर, जनवरी की जाती है फाइलर, फरवरी की जाती है फाइलर, लेकिन जब वो आया था उसने फ़ाइल की थी अपनी रिटर्न 2022 की, क्योंकि उसे एटीएल पे आने के लिए 22 की करनी थी। हमने उसे गाइड किया 23 भी आपकी ज़िम्मेदारी है। उसने कहा नहीं जी, मेरा तो अभी मकसद है, मैंने एटीएल पे आना है, ये फिर मैं देख लूँगा, बाद में कर लूँगा, ठीक है। अब जब 1 मार्च होगी तो क्या होगा कि ये जो 2023 की रिटर्न्स हैं इनकी एटीएल एक्टिव हो जाएगी, और वो ऑटोमेटिकली उस एटीएल से निकल गया कि उसने 22 की फ़ाइल की लेकिन उसने 23 की फ़ाइल नहीं की। ये रीज़न है कि आपको ड्यूरिंग द ईयर ये फेस होता है कि कोई बंदा एटीएल पे होता है लेकिन चंद माह बाद आप देखते हैं वो नहीं होता। So, 1 ईयर में 2 दफ़ा ऐसा हो सकता है कि वो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में डाल दिया जाए, एक पिछले साल के लिए और एक उस साल के लिए। और कोई सवाल? सर एक और क्वेश्चन है, पता जी। नहीं शायद मैं जल्दी पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन, लेकिन मेरे दिमाग में है कि जब हम टैक्स फाइल कर देते हैं तो उसकी कंफर्मेशन क्या होती है कि हमने जो फाइल किया वो बिल्कुल ठीक है, उसको उनको कोई इतराज़ नहीं होगा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन, क्योंकि इसके लिए मुझे आपकी टैक्स मास्टर क्लास लेनी पड़ेगी। लेकिन चलें मैं इसके ब्रीफली 1-2 पॉइंटर्स आपको बताता हूँ ताकि एक कॉन्सेप्ट आ जाए। एक टर्म है टैक्स में जिसको कहते हैं असेसमेंट ऑर्डर, उसके बगैर कोई लाइबिलिटी कुछ नहीं हो सकता। आपकी जब रिटर्न फाइल होती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली 120 का असेसमेंट ऑर्डर जनरेट कर देता है। उसका मतलब ये है कि उसने आपकी रिटर्न एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन डिपार्टमेंट के पास जो है उस साल के एंड के 1 साल बाद, यानी 5 साल इफ़ेक्टिवली आप समझ लो, तब डेट से 6 साल होते हैं जिसके दौरान वो उसको खोल सकती है और आपसे सवाल कर सकती है। तो अब उस स्टेज पे तो जब आपका 120 का असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया, ऑल इज़ वेल, आपकी कंफर्मेशन हो गई, आपको रिटर्न मिल गई। लेकिन 6 साल तक उनके पास ये राइट है, उन्हें खुद शक हो जाए, उनके पास कोई आपकी कंप्लेन पहुंच जाए, आपकी कोई इंक्वायरी खुल जाए किसी भी वजह से, अगर टैक्स ऑफिशियल आपके मैटर्स खोलना चाहे, आपकी उस रिटर्न को इन्वेस्टिगेट करना चाहे, तो उसके पास राइट है। ये मैनुअल इंटरवेंशन, ये मैनुअल इंटरवेंशन एक ऑटोमेटेड है, लेकिन लकीली सैलरीड क्लास और आपका कॉन्ट्रैक्टर उसके हाई रिस्क में नहीं आता।
एनुअल ऑडिट होता है, पैरामेट्रिक ऑडिट है जो बैलेटिंग से होता है, जो बोर्ड करता है, उसके पैरामीटर्स वो नहीं बताते, उसको उन्होंने लॉ बना के खुफिया रखा हुआ है, ठीक है, वो रैंडम पैरामीटर्स है। लेकिन ड्यू टू एक्सपीरियंस, हाई लेवल इंटरेक्शन, कनेक्शन, हमें कुछ आइडिया हैं वो पैरामीटर्स क्या हैं। उनमें से एक मेजर पैरामीटर मटेरियलिटी भी होता है, ठीक है। वो ऑटोमेटेड एक्सरसाइज है कि साल में जिनका नाम आ गया ऑडिट में, उनको ऑटोमेटिकली नोटिस जाना है, उनके अफेयर्स खुल जाने हैं। लेकिन माशाल्लाह यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल, बट with reference to the audit policy you are very small fishes in a very big pond, ठीक है। चल, और कोई सवाल? ऑल क्लियर? अच्छा, मेरा एक रूल है, जब सवाल ख़त्म हो जाते हैं ना, फिर मैं कुछ सवाल करता हूँ देखने के लिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो अभी मैं आपको दोबारा मौका दे रहा हूँ, कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए। जी, देखा, ये मोटिवेशन ऐसे ही आती है। नहीं ना, थोड़ा सा इरेलेवेंट सवाल बन रहा है जो मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि फाइलर के बारे में डिस्कशन हो रही, मेरे कुछ जानने वाले दो सवाल ऐसे हैं जो कि जानबूझ के फाइलर नहीं बनते, और वो ऑब्वियसली दे आर नॉट इन द आईटी इंडस्ट्री, वो कुछ और काम करते हैं। क्या वो ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं या फाइलर ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में? किस इंडस्ट्री में क्या काम कर रहे हैं? मतलब कोई होलसेलर है, कोई दूसरी टाइप के बिजनेस करता है, सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अच्छा, एक चीज़ तो ये देख लें, ये बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि लोग टैक्स नहीं पे करते। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो टैक्स पे नहीं करता, या उसके ब्याह पे कोई नहीं करता। मतलब एक छोटा सा बच्चा है ना, उसका जो दूध आ रहा है मार्केट से, वो भी जो लेके आ रहा है उसका माँ बाप या जो, वो उस पर टैक्स पे कर रहा है। अच्छा, ये जो आपने पूछा है ना, इसमें डिफरेंट सेक्टर्स वेरी करते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो काम ही नहीं कर सकते फाइलर हुए बगैर, ठीक है, और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो काम कर सकते हैं लेकिन उनकी कॉस्ट बड़ी सिग्निफिकेंटली हायर हो जाएगी। आपकी 4% डिडक्शन हो रही है, उनकी 8% हो रही है। उनका दिल है ना बने, फाइलर देते रहें, 100% ज़्यादा टैक्स देते रहें, ठीक है। अब ये जो एक डिफ्रेंसीशन पॉलिसी है ना, इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे FPR की इन्फोर्समेंट बहुत वीक है, रिटेलर्स, होलसेलर्स ना होने के बराबर है। अच्छा, अब टैक्स का दो चीज़ें हैं कि पूरी दुनिया में टैक्स दिया जाता है एक इन्फोर्समेंट खौफ की वजह से। मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कहीं भी कोई एक्सेप्शनल होगा मज़हब पे यकीन रखने वाला अच्छा मुसलमान, अपना फ़र्ज़ समझ के, वो अलग एक्सेप्शन है। अदरवाइज़ लोग खौफ की वजह से देते हैं, या वो प्योर बिज़नेस देखते हैं कि अगर मैंने टैक्स अवॉइडेंस करनी है मुझे इतनी कॉस्ट पड़ेगी, अगर मैं टैक्स करूँ उससे कम है, और अगर मुझे कोई हैरेसमेंट नहीं तो वेल एंड गुड। पाकिस्तान में मेजर मसला जो है ना, वो हैरेसमेंट और पब्लिक परसेप्शन का है। परसेप्शन इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर दैन रियलिटी। और पाकिस्तान में अभी हम इस डिबेट में नहीं जाते कि सही है या गलत है, लेकिन ये वाइड स्प्रेड पब्लिक परसेप्शन है कि टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैरेस करती हैं, और अगर हम टैक्स नेट में आ गए तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। ये मुकम्मल सच नहीं है, ये अनइन्फॉर्म्ड सीना गैजेट है, जो सीना बस सीना चलता है, जैसे आपके दोस्तों ने कह दिया हमारी तो मौजें हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई रियलिटी नहीं है। कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जहाँ पर बदकिस्मती से हार्ड हैंडेड मेजर्स होती है। देखिए, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के क्या तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक तरीका है आप टैक्स नेट बढ़ा दें। FBR के अपने कई चेयरमैन और कई वज़ीर ख़जाना ये फरमा चुके हैं, कौम को बता चुके हैं कि जी हमारे पास हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, मिलियंस ऑफ ऐसे लोगों का डाटा है। और ये अगर मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूँ आपको, इस वक्त रफली जस्ट ओवर 42 लाख है आपकी ATL, जिसमें से सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो आपकी नील रिटर्न्स का है। यानी 24 करोड़ की आबादी एज़ पर न्यू सेंसस, 42 लाख फाइलर हैं। इनकम टैक्स पेयर नहीं है, फाइलर्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब तरीका क्या है? मिलियंस का कहा है कि जी हमारे पास डाटा है, ये रेंज करता है 3 से 6 मिलियन। किसी ने 3 मिलियन कहा, किसी ने 4 मिलियन कहा, किसी ने 6 मिलियन का। ऐसे लोग जिनका लाइफस्टाइल बहुत रॉयल है, जो मल्टीपल ओवरसीज ट्रिप करते हैं, या जिन्होंने बड़े महंगे एसेट ख़रीदे हैं लेकिन उनका NTN भी नहीं है और वो फाइलर भी नहीं है, तो फिर उनकी इनकम कहाँ से आ रही है? मगर इसमें मेहनत लगती है
और इसमें पॉलिटिकल प्रेशर्स आते हैं। वहाँ भी जो लोग काम कर रहे हैं सारे लोग, ना किसी भी जगह सारे लोग पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी भी महकमे में ना सारे लोग आइडियल होते हैं, ना सारे लोग करप्ट होते हैं, अच्छे बुरे हर जगह। अब प्रॉब्लम ये है कि उधर जाएं और मेहनत करें तो फिर हैरेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप टारगेट पूरे कर लेंगे। जब हम उधर जा नहीं रहे तो फिर क्या होता है कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को निचोड़ा जाता है। उसके क्या तरीके हैं? दो तरीके हैं मेजर। एक तरीका है जो होता है कि टैक्स रेट बढ़ा दो, 3% है 4% हो गया, सैलरी रेट है वो बढ़ा दो। दूसरा तरीका होता है, और वो ज़्यादा कॉरपोरेट सेक्टर उससे हिट होता है, वो डिफरेंट हैरेसमेंट टूल्स होती हैं। अब मिसाल के तौर पे आप पे नहीं एप्लीकेबल एडवांस टैक्स, कॉरपोरेट सेक्टर के ऊपर होता है, ठीक है। अब विदाउट नेमिंग एनीवन, यहाँ पे कई लोगों से हुआ कि उनको एडवांस टैक्स के नोटिस आए जबकि उनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं था। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम थे, हमने उन्हें गाइड कर दिया, सारा वो रिज़ॉल्व करा दिया। लेकिन अब आप सोचें कि वो एडवांस टैक्स के नोटिस निकले हो 30-40 लाख, तो कितने लोगों की एक्सेस है क्वालिटी रिसोर्स तक, और उनमें से कितने लोग हैं जो उनके कॉर्नर में उनके लिए फ़ाइट करते हैं, ये भी एक इशू है। तो चलें 40-42 लाख लोगों में से 5 लाख बच गए, चलें बहुत हम लग्जरी एस्टिमेट लगाते हैं 10 लाख बच गए, चलें और कर लेते हैं 20 लाख बच गए। 20 लाख लोग पे करेंगे ना, तो जितना वो पे करेंगे वो रेवेन्यू टारगेट को हेल्प करेगा। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि अल्टीमेटली उनके जहन में एक खौफ आएगा। दूसरा, जब ये बात फैलेगी कि हमारे ऊपर तो लगता नहीं था, हमें भेज दिए, तो उसकी भी नेगेटिव रिपरकशंस होंगी इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इन टर्म्स ऑफ जो एक इमेज बनता है डिपार्टमेंट का। तो ये जो आपने सवाल पूछा है बड़ा एक ओपन एंडेड डिस्कशन है। पाकिस्तान में बिल्कुल ये वाइड स्प्रेड परसेप्शन है, और कुछ सेक्टर्स के लिए ये बिल्कुल रियलिटी है, लेकिन कुछ सेक्टर्स के लिए ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आईटी में आप नॉन फाइलर होकर काम करना चाहें तो आपको एक्चुअली नुकसान है पाकिस्तान में। मैंने मिसाल दी आपके कोलीग्स की, आप ज़्यादा टैक्स पे करें, वो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने नहीं पे करना, वो जो भी आपको पेमेंट कर रहा है उसने काट के आपको पेमेंट देनी है। तो ये जो डिफरेंट चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही हैं ना, उनकी वजह से सूरत हाल बदल रही है। वो कहते हैं ना, कुब्बे को लात पड़ी उसका कुब सीधा हो गया। तो हमें ये IMF वर्ल्ड बैंक कहते हैं, उन्होंने रिकवरी करनी है अपने लोन्स की, कि ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करो करो करो, हम रेजिस्ट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हम आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे बेनिफिट में है। सिर्फ अगर हम अपने टैक्स लॉज को बेहतर कर दें, उसमें सब्जेक्टिव पावर बहुत है। जो डिपार्टमेंट में लोग हैं उनके भी बड़े इश्यूज़ हैं, बहुत सवेयरली अंडरस्टाफ्ड हैं, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ नहीं है, वो चीज़ें, प्लस उनके जो पैकेजेस हैं। अब पाकिस्तान में एक महकमा है जिसकी बड़ी तारीफ़ होती है, मोटरवे पे अक्सर लोग ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तानी हैं, क्यों नहीं वो लेते रिश्वत, क्यों मेल प्रैक्टिसेस नेक्स्ट टू नथिंग है, 100% तो कहीं रेडिकेट नहीं होती। एक कल्चर है, ट्रेनिंग है, पढ़े लिखे लोग, दूसरा उनके पैकेजेस हैं। एक बंदे को आपने ताकत दी हुई है कि उसके कलम के एक साइन से मिलियंस इधर या उधर होने हैं, और आप उसको उतना पैकेज भी नहीं दे रहे जिसमें वो अपनी बाइज्जत गुजर बसर करे। उसको सोच के ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन ये फिर एक सिस्टमेटिक फेलियर है जो मुआशरे को एक दूसरे रुख की तरफ धकेल रहा है। फिर आप सिर्फ ये काउंट कर रहे हैं कि वो इतना बाज़मीर है कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर खड़ा रहेगा, और होना चाहिए, लेकिन अक्सरियत ऐसा नहीं कर पाती, टेम्पटेशंस होती हैं। तो ये एक क्विक आंसर है जी आपके सवाल का। आई होप दैट आंसर्स जी। Sir, is there any legal way to avoid this 4% as well? नहीं मेरा क्वेश्चन। अब मुल्क आपने चलाना है कि नहीं चलाना है? आगे कर्जों पे चल रहे हैं आप। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में हर जगह कुछ ना कुछ एक लीगल प्रोसीजर भी मतलब होता है जी, ये लीगल है तो हमने ये कर दिया, इतने परसेंट था। फॉर एग्जांपल दिस एग्जाम सर्टिफिकेट व्हिच वी डिस्कस्ड अर्लियर, वो भी एक मेरे पास एक लीगल है। अगर किसी को नहीं पता वो देगा, अगर किसी के पास है जिसने जो भी एक कर करके वो एनओसी ले लिया है, इन द लीगल वे वो 1% वो करता है। Is there any way we can avoid this? Maybe it's at a company level we have to do something, or maybe at an individual level we have to do something to avoid this 4%. Okay, I'll give you the answer. The answer is yes and no. Most common no. आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे, वो कहेगा नो। सेक्शन 1531B इज़ एब्सोल्युटली क्लियर।
स्केड्यूल 1 उसके रेलिवेंट पार्ट में डिवीजन 3 देखें, एब्सोल्युटली क्लियर, कोई जगह नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं एडवांस टैक्स प्लानिंग, उसमें आप सिर्फ एक कानून पे नहीं देखते, आप डिफरेंट कानूनों के आपस के इम्पैक्ट देखते हैं। हमारा जो कानून है ना, उसके बारे में सर रास मसूद ने एक बात कही थी जिसको जनरली कायदे आज़म से एसोसिएट किया जाता है कि ये जो एंग्लो सेक्सन लॉज है ना, ये मोम की नाक है। इफ़ समवन इज़ सफिशेंटली कॉम्पिटेंट, able to devote sufficient time and resources, there is always a way. So अगर आप उतने इंटरेस्टेड हों और उस लेवल पे आप जाएं तो yes, there is always a way. 4% से ज़्यादा आपको टैक्स कंसल्टेंट की फीस देनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि लाइक द वे रेमिटेंस आती है लाइक कंपनी लेवल पे, जो रेमिटेंस के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, फॉर एग्जांपल होगा कुछ मिनिमम, तो 0.25%. can we do something like द प्रॉब्लम है कि आपका पैसा बाहर से नहीं आ रहा, आप तो डिफरेंस समझो ना, आपको कंपनी पे कर रही है। लेवल पे कुछ ऐसा चेंज हो सकता है कि कंपनी का बड़ा सिंपल है, कंपनी जो आईटी एक्सपोर्ट्स कर रही है उसके ऊपर अगर पीएससीबी से रजिस्टर्ड है तो 0.25% विद होल्ड हो रहा है जो इनकी फुल फाइनल लाइबिलिटी सेटल कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसकी बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, पैसा बाहर से आ रहा हो, बैंक में आ रहा हो, फॉरेन करेंसी में आ रहा हो, उसके सर्टिफिकेट वो सारी पूरी हो तो ओके होता है। अगर वो रिक्वायरमेंट ही पूरी ना हो तो फिर कंपनी को भी टैक्स ज़्यादा लगता है। सर व्हाट इफ कंपनी हमारे अकाउंट्स बना फॉर एग्जांपल एंड इंस्टेड ऑफ लोकल ट्रांजैक्शन दे ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड लाइक यूएसए फॉर एग्जांपल, मुझे पता है काम तो बढ़ जाएगा, लेकिन इज दिस अ वे? फिर आपका और कंपनी का रिलेशनशिप कैसे डिफाइन होगा? फिर तो आप बाहर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, फिर तो आप फ्रीलांसर हैं ना, फिर आप कंपनी से कैसे लेंगे? फिर अगर कंपनी आपको शो करेगी अपनी रिकॉर्ड में तो कंपनी का ऑडिट खुल जाएगा, भाई वो तो फ्रीलांसर है, ये आपने कैसे किया? और कंपनी अगर आपकी खुलवाएगी तो वो कंपनी से कहेंगे क्या इरादा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं आप, इनके क्यों खुलवा रहे हैं आप खुद खुलवाना चाहें आप खुलवा सकते हैं, बट देन आपका टैक्स स्टेटस चेंज हो जाएगा। देन यू वुड नो मोर बी अ लोकल कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द कंपनी, you would instead business, because it's a partnership not a company, you would instead be a freelancer, जैसे अक्सर लोग करते हैं, आप वर्क पे करते हैं, बाकी जगहों पे करते हैं। सो अगेन वे है लेकिन वो नहीं जो आप कह रहे हैं, लेकिन एट दिस लेवल आई थिंक के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इट माइट नॉट बी वर्थ योर टाइम एंड एफर्ट। आप ऑफ दिस यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई शेयर माई नंबर टू, वी कैन डिस्कस आपके क्या फाइनेंशियल प्रोपोजिशंस हैं एंड वी कैन सजेस्ट। मतलब उसमें इंतहा तो कोई नहीं ना, आपको याद है पनामा जो हुआ था, तो ये आपको क्या लगता है ये जो अकामे लिए हुए थे या ये जो ऑफशोर अकाउंट्स थे, ये वैसे ही खुशी खुशी वैसे शो ऑफ के लिए पैसा ज़ाया करना था? सो इसमें ये सारा टैक्स प्लानिंग है हिस्सा। फॉर एग्जांपल मैं अब आपको समझाता हूँ, यूएई के अकामे का मकसद क्या था बताएं ज़रा। एक टैक्स का मकसद था उसमें। इंटरनेशनल जो टैक्सेशन ट्रीटीज़ है ना, डबल टैक्सेशन ट्रीटीज़ और एक्सचेंज ऑफ टैक्सेशन इंफॉर्मेशन, वो टैक्स रेजिडेंट स्टेटस पे होती है। जब आपने एक मुल्क का इकामा रेजिडेंस लिया हुआ है तो इसका मतलब ये आपकी टैक्स रेजिडेंस वहाँ की हो गई। अब मुझे पता ही नहीं आपने यूएई का इकामा लिया हुआ है, मैं तो मांगूंगा पाकिस्तान की टैक्सेशन अथॉरिटी से, कहेगी कुछ भी नहीं है। मैं यूके की टैक्सेशन अथॉरिटी से मांगूंगा, वो कहेगी कुछ भी नहीं है। मैं यूएस की टैक्सेशन अथॉरिटी से एक्सचेंज करना चाहूँगा, नहीं है। तो मतलब जो लेते हैं वो बेवकूफ़ नहीं होते, उसके पीछे प्लानिंग होती है, उसके पीछे रीजनिंग होती है, उसके पीछे रिसोर्सेज स्पेंड होते हैं। लेकिन वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में उनकी जो बेनिफिट उनके नज़दीक जो परसीव्ड हैं वो कॉस्ट को बहुत ज़्यादा आउटवे कर रहे होते हैं, ठीक है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, जनरली फॉर यू एट दिस लेवल एट द मोमेंट नहीं, बट इंशाल्लाह एज यू ग्रो लेटर ऑन स्टेजेस देयर इज़ ऑलवेज अ वे। जी आपने भी हाथ उठाया था, उसके बाद उस्मान भाई आपका। अभी आपने ब्रीफ किया एडवांस पेमेंट नोटिस, एडवांस टैक्स का 147 जी। अभी लेकिन सेलेक्ट
twice a year की email आई है, so that was a system error. No, they were intentionally sending you. You were supposed to either be scared and pay them something or respond to them. एक चीज़ याद रखें, अक्सर लोग एक एडवाइस देते हैं जो मैं बहुत डिस्करेज करता हूँ कि जी अगर आपको लग रहा है आप पे एप्लीकेबल नहीं है तो आप रिस्पॉन्ड ना करें. नेवर डू दैट. सरकारी खाते में जो नोटिस इशू हो गया ना, इससे मैटर नहीं पड़ता कि वो सही था या गलत, ये तो बाद में आपने प्रूव करना है. इशू हो गया है तो आपको उसे रिस्पॉन्ड करना है. ठीक है, अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उनके पास 6 साल हैं और कई दफ़ा वो जागते हैं 6ठे साल में जब टाइम बार होने वाला होता है. वो आखिरी महीने में जून में जी अभी हमें इसको फ़ौरन क्लोज़ करना है. मैं ब्लेम नहीं कर रहा, इश्यूज़ भी हैं, फेलियर्स भी हैं, उनके जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हैं अंडर स्टाफिंग की. अगर आप नहीं करते तो अब सादा एक हम लोकल ज़ुबान में अगर बात करें फ्रैंकली, तो एक तरह से आप मुजरिम शो हो रहे हैं. नोटिस गया, इन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, तो इग्नोर कर रहे हैं. ठीक है, आप देखिए कितने सारे नोटिसेस होते हैं जो अल्टीमेटली नल एंड वॉइड हो जाते हैं कोर्ट्स और अपील्स के थ्रू. ऑफिसर को उसका कोई नुकसान नहीं होता. इस वक्त सिंगुलर पॉइंट क्राइटेरिया असेसमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन, इट डज़ नॉट मैटर कि उन्होंने क्या नोटिस इशू किए. तो ये फिर किस कल्चर को प्रमोट करता है? इंटेंशनली अगर आप सेंड कर रहे हैं तो दे नो दैट ही इज अ सेलिड पर्सन, इवन देन दे आर सेंडिंग यू द नोटिस. और फिर अगर हम रिप्लाई नहीं करते तो वी वुड बी गिल्टी एट द एंड. अगेन ये कल्चर तो फिर सही नहीं है ना. तो आप अभी बात हो रही थी कि एक पर्सन है वो क्यों टैक्स नेट में है, तो अगेन ये स्केरी थिंग्स तो है ना फिर इसमें. बिल्कुल, मैंने यही तो कहा कि डिफरेंट सेक्टर्स हैं. कुछ सेक्टर्स ऐसे ही हैं जो वाकई जेन्युइनली रिसीविंग एंड पे, लेकिन ऐसा नहीं है. मिसाल के तौर पे ये तो आप फाइलर हैं तो आपको तो इस तरह बाइज्जत तरीके से नोटिस आ रहा है. अगर कोई बंदा नॉन फाइलर है और उसको लेसन देना हो और वो हत्ते चढ़ जाए तो उसका तो सारा कुछ सील बंद करके पहले कहेंगे आओ उधर आके हिसाब दो. तो हु इज़ एट द वर्स्ट एंड देन? हाँ, जनरली ये ज़रूर है. मैं तो इसका सबसे बड़ा प्रोपोनेंट हूँ. आप मेरे अगर आर्टिकल्स पढ़ेंगे, रिसर्च आर्टिकल, कॉलम्स, मैं तो हर जगह पे ये बात करता हूँ. मेरे तो FPR के दोस्त नाराज़ होते हैं, लेकिन जो बात सही है वो सही है. मैं कहता हूँ कि जो हमारे लॉज हैं उनमें बहुत बड़ा फ्लॉ है सब्जेक्टिव पावर. मैं अगर चेयर पे बैठा हूँ, मैं आपका और ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, इनका और ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, और मेरी उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. ठीक है, अगर मैंने अपने टारगेट मीट किए हैं, मेरे 100 में से 50 डिसीजन रद्द हो गए हैं, ऊपर जाके नल एंड वॉइड हो गए हैं कि मैंने गलत नोटिस इशू किए हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं. बल्कि मैंने अगर अपने टारगेट अचीव किए हैं, मुझे उल्टा प्रमोशन मिलेगी, मुझे बोनस मिलेंगे, मैं रिकमेंड होऊंगा. सो प्रॉब्लम सिस्टम की है. सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है. इस सिस्टम में आप जिस बंदे को डालेंगे, कोई एक्सेप्शन हो तो अल्टीमेटली उसने उस सिस्टम का पुर्जा बन जाना है ना. आपको लॉज, हमें लॉज चेंज करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस, ट्रस्ट डिफिसिट ख़त्म करने की, टैक्स बेस बढ़ाने की, जो डिपार्टमेंट के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व करने की. ये सारी चीज़ें पैरेलल होंगी तो बेहतर होगा. टैक्स लॉज की सब्जेक्टिवनेस ख़त्म हो, हार्मोनाइजेशन हो लॉज की. अभी तो आप बिज़नेस में नहीं है, आपको सेल्स टैक्स का आइडिया नहीं है. जो बिज़नेसेस पूरे मुल्क में ऑपरेट कर रहे हैं उनकी अगर मैंने आपको 10 सर बता दी, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे. पोस्ट 18 अमेंडमेंट, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, प्रोविंसेस का है. हर सूबे की अपनी टैक्सेशन अथॉरिटी है. एक बंदा पूरे मुल्क में कर रहा होता है, सिंध से उसको नोटिस आ जाता है भाई आपने सर्विस यहाँ पे दी है, टैक्स हमें दें. पंजाब से उसे नोटिस आ जाता है ओरिजिनेट तो यहाँ हुई थी ना, यहाँ से दें. इस्लामाबाद से नोटिस आ जाता है रजिस्टर तो आप इधर हैं, इधर दें. ठीक है, वो कोर्टों में भाग रहा होता है. तो नो डाउट प्रॉब्लम्स बेतहाशा हैं, लेकिन वो सिस्टम के हैं, इंडिविजुअल्स के नहीं, एंड दे नीड टू बी अपडेटेड. लेकिन आपके एंड पे एक टैक्स कंप्लायंट बंदा जो है, उसके एंड पे जनरली ये चीज़ें जो हैं उस हद तक प्रॉब्लमेटिक नहीं है. सैलरीड क्लास हो गई, स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, IT सेक्टर हो गए. और देखें एक शिफ्ट आता है जब भी हमारा ना एक फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होता है. इफ़ वी बी वेरी प्रोफेशनल, कोई अगर हम पॉलिटिकल बात ना करें, एक फैक्चुअल करें, तो आप देखिए कि तकरीबन 1.5-2 साल तक पहले रिफ़ंड्स ऑफिशियली इशू होना शुरू हो गए थे. फास्टर सिस्टम आ गया था. ऑडिट हैरेसमेंट आपकी काफ़ी कम हो गई थी. सेल्फ असेसमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस जाता जा रहा था. डिपार्टमेंट में वो एक कल्चरल चेंज आ रहे थे. सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स अभी भी थी. लॉज में सब्जेक्टिव पावर वो सारी थी, लेकिन वो एक कल्चर शिफ्ट हो रहा था.
अच्छा, उसके बाद अभी करंटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, मेरा तो दिल करता है कि जिन्होंने रिफ़ंड इशू किए हैं वो साबिक जो FPR चेयरमैन हैं और ऑफिसर्स, इनके ख़िलाफ़ मैं पर्चे कटवाऊँ। अच्छा, अब इसका इम्पेक्ट क्या जाता है? व्हेन द टॉप बॉस इज सेइंग दैट, वो नीचे तक अनरिटन पॉलिसी चली जाती है, वो एक कल्चरल शिफ्ट आता है। अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स तो हैं, वो तो पहले भी थी, वो तब भी रिजॉल्व नहीं हुई, अभी भी नहीं, लेकिन वो जो एक कल्चरल चेंज होता है ना, लोगों का फोकस शिफ्ट होता है, वो फिर ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अब ये 147 के नोटिस आने शुरू हुए थे पिछले साल से, उससे पहले आया आपको? ठीक है, उससे पहले उन्हें ही आ रहे थे। जब एक शिफ्ट हुआ कि अब हमारा दोबारा फोकस है कि हमने वो सारी मैयर्स करनी है और हमने ये टारगेट अचीव करना है, तो जो मुलाजिम है ना, उसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। सरकारी मुलाजिम में कोई एक्सेप्शन होता है कि वो बॉस को ना कह सके, बट स्टिल मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ओवरऑल आपके फ़ायदे में, आपने गाड़ी लेनी है, आपने घर लेना है, आपने कोई भी काम करना है, वेयर यू गाइज आर स्टैंडिंग, फॉर यू इट्स बेनिफिशियल टू बी अ फाइलर। ये इक्का दुक्का एक आधा साल में आए, कितनी आपकी कॉस्ट लग जाएगी? 10,000, 20,000, 30-40,000 डिवाइडेड बाई 12 मंथ, 3-4-5,000 पर मंथ। एक आपने गाड़ी ली या एक प्लॉट लिया या बच्चों की एजुकेशन, उस पर इससे ज़्यादा सेविंग है। और फिर बाकी जो हैरेसमेंट होनी है, अगर आप ये ना कर रहे हो, या 4% जो आपने एडिशनल टैक्स देते रहना है, वो इसको फार आउट वे करते हैं। जी जनाब। सर इसी से रेलेवेंट एक छोटा जी। सा क्वेश्चन है, दूसरी तरह से कर लीजिएगा। अभी आपने कहा कि पेमेंट फॉर सर्विसेज के ऊपर जिसमें आपने एक्सप्लेन किया कि कुछ स्पेशल सर्विसेज हैं जिस पे उन्होंने रिड्यूस रेट दी है, जिसमें IT भी फॉल करती है। सो हम देखते हैं कि सैलरीड क्लास जो है, तो वो भी IT सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रही हैं, जो IT सेक्टर में या स्पेशल सर्विसेज में फॉल करती है। तो उनके लिए सेपरेट क्यों नहीं है स्लैब्स? क्योंकि उनका टैक्स रेट इज far much higher than what these contractors are paying. Right? ये 4% दे रहे हैं तो वो 10%, even 15% तक भी दे रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये वो चीज़ आ जाती है जहाँ पे टैक्स प्लानिंग है। अच्छा, टैक्स पॉलिसी के हवाले से हम इसे कहते हैं टैक्स रैशनलाइजेशन, कि पॉलिसी एंड पे तो ये रैशनलाइजेशन होनी चाहिए कि अगर एक सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं तो वहाँ पे सैलरीड क्लास के लिए भी ये दें, और कोई इशू नहीं है, आपने एक अमेंडमेंट ही पास करनी होती है, फाइनेंस एक्ट जब आ रहा है उसमें आप डाल देते हैं। लेकिन अब नहीं डाली तो आप क्या कर सकते हैं? अब आपके एंड पे ये है, इसको यही होती है टैक्स प्लानिंग, कि आपने ये देखा कि अगर मैं एज एम्प्लॉई आता हूँ तो मुझे इतना रेट पड़ेगा। यू कैन निगोशिएट विद द कंपनी कि जी मैं एज एम्प्लॉई नहीं करना चाहता, मैं एज कॉन्ट्रैक्टर करना चाह रहा हूँ। इमीडिएटली आपकी टैक्स लाइबिलिटी गिर जाएगी। अब पॉलिसी लेवल पे आप लॉबी कर सकते हैं, उन्हें प्रपोजल दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते। उस पर फिर आपने सिर्फ अपना दिल जो है वो आप कुड़ाएंगे और कुछ नहीं है, खून जलाएंगे। हाँ, जो कर सकते हैं वो यही है जो आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जो चीज़ हमारे हाथ में है उसके अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं। जी जनाब, और कोई सवालात? जी। एक ज़माने में ऐसा होता था कि सैलरी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते थे कि कुछ पार्ट आप हाउस रेंट में दे दिया, कुछ फ्यूल अलाउंस में दे दिया, कुछ मेडिकल अलाउंस में दे दिया, और एक बेसिक सैलरी डिफाइन करके उसको टैक्स में डाल देते थे। उस हिसाब से आपको एक टैक्स डिफरेंट हायर ब्रैकेट से आपको लोअर ब्रैकेट में रखते थे। कंपनी यूज्ड टू डू दीस थिंग्स। क्या ये चीज़ें अभी भी एप्लीकेबल हैं या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा कहें। वो भी समझदार हो गए। अब सिंपली आपका मेजरली, अदर देन फ्यू एक्सेप्शंस, अगर हम जनरली एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं और मैं सरकारी की बात नहीं कर रहा, तो सिर्फ आपको मेडिकल अलाउंस की फैसिलिटी है, विच कैन बी अप टू 10% ऑफ योर ग्रॉस पे। उसके अलावा आपको जो कुछ मिलना है वो आपकी पार्ट ऑफ सैलरी कंसिडर होगा। तो पहले वो जो अक्लमंदियाँ होती थी, प्लानिंग्स होती थी कि ना, कि डिफरेंट ब्रैकेट्स में डिवाइड करके सैलरी की ब्रैकेट गिरा दें, टैक्स रेट कम हो जाएगा, वो अब किस्सा पारी में। मतलब अभी भी हम करंट सैलरी का 10% एज अ मेडिकल अलाउंस बना के उनको टैक्स, दैट्स द ओनली थिंग, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की बात है, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए नहीं, ये वो तो, हाँ वो तो सैलरीड की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं तो फिर आपको ये अलाउंस वाली फैसिलिटी मिलेगी, इधर उधर मेडिकल फैसिलिटी मतलब मेडिकल इंश्योरेंस मिल रही है तो फिर आप ये नहीं कर सकते। लेकिन ये तो फिर पॉलिसी कंपनी वाइज होगी, या सबके लिए मेडिकल इंश्योरेंस होगी या नहीं होगी, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो सकती, या हो सकती है। कंपनी अगर दे रही है ये दो अलग चीज़ें हैं ना।
एक है मेडिकल अलाउंस, एक है इंश्योरेंस। और वो ज़ाहिर है आपका एम्प्लॉयर चूज़ कर रहा है। अगर उसने पहले ही आपको इंश्योर कराया हुआ है तो फिर आपने कौन किस चीज़ का अलाउंस लेना है। इंश्योरेंस का तो मतलब ही यही है, आपने बीमार पड़ना है, वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने आपके बिल फुट कर देने हैं। हाँ, अगर वो नहीं दे रहे तो फिर आप मेडिकल अलाउंस के लिए जा सकते हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज़ मोर एकेडमिक, क्योंकि आपसे तो ये रेलिवेंट नहीं है। हमारे लोगों से relevant है। कौन से लोग हैं आपके? जो मतलब हमारे एम्प्लॉइज हैं जो अच्छा, हाँ, एम्प्लॉयज़ के हवाले से ये। अब आप उसका इम्पेक्ट देखें ना, उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें कि एक बंदे की ग्रॉस पे आप लगा लें जी, चलें कम से कम 50,000 लगा लें महीने की, ठीक है, तो साल के 6 लाख बन गए। 6 लाख का 10% क्या हुआ? 60,000। 60,000 उसकी ब्रैकेट में देख लें, मल्टीप्लाई करके क्या रेट है। अब वो सेविंग देनी है, उसके अगेंस्ट कॉस्ट देख लें, तो वो फिर एक बिजनेस डिसीजन होता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इज़ इट वर्थ गोइंग थ्रू दैट रोड। ठीक है, मतलब मैंने ये एनालिसिस करना है कि अगर मैं आपको 5,000 बचा के दे रहा हूँ और उस चक्कर में मेरा 7,000 खर्च हो रहा है, तो वो अक्लमंदी नहीं है। जी, इसी में मैंने देखा एक दो मेरे दोस्त हैं जो जॉब करते हैं, लाइक टीआरजी हो गए, डिफरेंट मैंने उनकी सैलरी स्लिप्स देखी हैं, उसमें उन्होंने डिफरेंशिएट फिर भी किया हुआ है, लाइक कुछ हाउस रेंट ये कोई 2-3 वो होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि इंटरनल पर्पसेस के लिए होता है, कई पेरोल सिस्टम्स हैं जो डिज़ाइन ही इसी तरह के हुए हैं और बहुत अरसे से हुए हैं, और इंटरनली भी आ जाता है डिफरेंट बाइफ्रोकेशंस में कि वो क्या है। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा है सरकारी इदारों में, प्राइवेट में ये कंपैरेटिवली कम है, लेकिन फिर भी है। बट उसका टैक्स के हवाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, लेकिन जब हमने टैक्स की कैलकुलेशन उस पर करनी होती है तो वो अक्सर डिफ़र हो जाती है, वो नहीं रहती। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखें, मैंने तो इतनी डेप्रीसिएशन की है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो टैक्स के लिए अलावेबल। जी, यूज केस डिस्कस करते हैं। हमारी डोमेन से शायद वो रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो फॉरेन रेमिटेंस आती हैं अदर देन जो फ्रीलांस सर्विसेज देते हैं, जैसे कि मेरे कोई रिलेटिव है, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है पाकिस्तान में, वो मेरे नाम पे 20 लाख या 10 लाख भेजें या जो भी लिमिट है, उसका मैं किसी लिहाज से लायबल हूँ? ओके, जो पैसा आपके नाम पे आ रहा है ना, उसका आपको एविडेंस सिक्योर करना होगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्या ट्रांजैक्शन है। अगर किसी ने आपको कर्ज दिया है तो एग्रीमेंट ड्रॉ करें, गिफ्ट दिया है तो एग्रीमेंट ड्रॉ करें, और गिफ्ट है तो ब्लड रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और अगर उसने वैसे ही मानती रकम दी है कि जी मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, उसका ड्रॉ करें। क्यों? क्योंकि आपके बैंक में आ रहा है तो अब तो आपसे FIA भी पूछ सकती है, आपसे स्टेट बैंक भी पूछ सकता है, और FBR तो पूछ सकता है। वेस्टर्न यूनियन भी आपका CNIC लेता है, आपको पता है, और उसने वो रिपोर्ट देनी होती है स्टेट बैंक को, ठीक है। और अगर FBR एक्वायर करना चाहे, वो लिख के स्टेट बैंक से वो डाटा ले सकती है। तो हमारे यहाँ ये अवेयरनेस नहीं है, लेकिन एज़ पर द लॉ आप रिक्वायर्ड हैं कि आप वो डॉक्यूमेंट बनवाएं और उसको 6 साल तक महफूज रखें। आमतौर पे होता नहीं ये सैलरीड के साथ, लेकिन कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपसे इनमें से कोई भी इदारा पूछता है और आप कहते हैं जी उन्होंने भेजा था, मैंने कुछ बनवाया नहीं है, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगेन डिपेंड करता है क्या पर्पज़। मिसाल के तौर पे मैंने आपको, तो फिर आप एक एग्रीमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ लिखेंगे कि ये इमानती रकम आ रही है जो उन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए की है, और सिर्फ आपके अकाउंट में आ रही है, आप उन्हें वो देंगे, और यहाँ पे जब आप देंगे तो उनसे रसीद लेंगे। ये चीज़ हमें अपने रिटर्न्स में भी शो करना नहीं, ये आपको अपने रिकॉर्ड में सेफ रखना है, ठीक है। अगर हाँ साल के एंड तक वो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रहा है, फिर आपको शो करना होगा और उसकी रिकॉन्सिलिएशन होगी, ठीक है। अगर साल के दरमियान हो गया तो आपने रिकॉर्ड सेफ रखना है, क्योंकि देखें रिटर्न है बैलेंस शीट की तरह, वो साल के एंड पे आप दे रहे हैं। अगर आपकी वो इनकम नहीं है तो इनकम साइड पे तो आएगी ही नहीं, जो कि नहीं है, ठीक है। और अगर वो आपके बैंक अकाउंट बैलेंस में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो आपकी एसेट साइड पे भी नहीं है।
लेकिन अच्छा टैक्स कंसल्टेंट उसका नोट रखेगा, उसकी वर्किंग होगी और आपको या आपको कहेगा अपने पास महफूज रखो या आपसे कॉपी लेके खुद महफूज रखेगा और वो 6 साल तक महफूज रखनी होगी। ठीक है जी, और कोई सवाल? चलें जी, एज आई प्रॉमिस माई कॉन्टेक्ट नंबर इज़ 0322-421-9292। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0322-421-9292 and our website is mlcc.pk or feel free to reach out in case of any query you have. The best way to reach is either send a quick email ozmeer@mlcc.pk. O for Umar, Z for Zahir, Meer M-E-E-R, not M-I-R, @mlcc.pk. ये खैर वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा और you can send me a quick WhatsApp. The first time you send me a message, please introduce yourself, your good name and that we met here so I can recognize you and you are most welcome. कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई भी इशू हो, we would be more than happy to assist you. वैसे ही आप जो हैं हमारे लिए more than business है, आपके जो पार्टनर्स और आपकी टीम है उनसे हमारा एक बड़ा अच्छा क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप भी है। तो आई होप यू फाइंड टुडे सेशन यूज़फुल, आपके नॉलेज में भी इजाफा हुआ और आपको भी उसी तरह मज़ा आया जैसे हमें आया। होपफुली इंशाल्लाह विल बी इन टच। टेक केयर। जी अभी नहीं टच हुआ, चलें कोई नहीं, कर लें टच। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनकी और भी इनकम स्ट्रीम्स हैं अदर देन दिस? एक, सिर्फ एक शख्स, दो, ओके। आपकी कौन सी इनकम स्ट्रीम है? टीचिंग, ओके। पार्ट टाइम, ऑनलाइन? पार्ट टाइम यूनिवर्सिटी यूसीपी एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ओके। लेकिन उसको पिछले साल तो वो था, उस पे उन्होंने सैलरी में है या आपका कॉन्ट्रैक्ट है? वो कॉन्ट्रैक्ट है। लास्ट ईयर तो उन्होंने इसको लगवाई थी। हाँ, तो वो आप शो करते थे लेकिन उस पे टैक्स नहीं किया। हाँ, तो वो आपको तो इशू ही नहीं है। आपकी क्या इनकम है? सर हाउस रेंट वगैरह और ये जो एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर तो आपकी मौजें, आई एम श्योर मालिया वगैरह आप दे रहे हैं? वो तो दे रहे होंगे, अच्छा दे दिया करें कभी मसला बन जाता है। और जो रेंट है वो डिक्लेयर है या नहीं? अभी तक तो नहीं। ठीक है, रेंट का जो एक्चुअल लॉ है ना, रेंटल इनकम के ऊपर टैक्सेस एप्लीकेबल है एज़ पर द स्लैब। टैक्स रेट कार्ड फाइनल हो गया, इंशाल्लाह हम भेज रहे होंगे 2-4 दिन में, तो आपसे आई एम श्योर उस्मान साहब शेयर भी कर देंगे, उसमें रेट्स होंगे। हमारे यहाँ ये कल्चर है, लोग नहीं डिक्लेयर करते रेंटल इनकम, ना टेनेंट कर रहा होता है ना लैंडलॉर्ड कर रहा होता है। हम आपको कानून की गाइडेंस देने आए हैं। एज़ पर द लॉ रिक्वायरमेंट है कि आप डिक्लेयर करें और उसके ऊपर जो एप्लीकेबल टैक्सेस हैं एज़ पर द स्लैब, जितना आपको टेनेंट पे कर रहा है, जैसे सैलरी की स्लैब्स है ना, उसी तरह रेंटल इनकम की भी स्लैब है। जितना टोटल रेंट आपको क्यूमुलेटिवली सारी प्रॉपर्टीज से आ रहा है, उसके ऊपर जो रेट एप्लीकेबल है वो आपने पे करना है। और सर उसकी कोई बिल्कुल लोअर ब्रैकेट क्या है, कितने पे एप्लीकेबल होता है? ये जो आपकी रेंटल इनकम है ना जी, इसके ऊपर मिनिमल जो है, आई थिंक इस साल उन्होंने चेंज किया है थोड़ा, एक सेकेंड रुकें। आपने कोई कंपनी तो नहीं इस्टेब्लिश की हुई? एज इंडिविजुअल ही कर रहे हैं। पहले 3 लाख के ऊपर कोई रेंट नहीं है, यानी 25,000 महीने तक नहीं। 25,000 महीने फिर तो हम आ ही जाएंगे। लाहौर में तो आ ही जाएंगे मेरा नहीं ख्याल लाहौर में कोई जगह मिलेगी जो 25,000 महीने से कम में, अनलेस के आप नहीं, अगर किसी की एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज हो, लेकिन क्यूमुलेटिव अच्छा क्यूमुलेटिव है। तो ये तो जो इनकी सोर्स ऑफ इनकम है वही डिफरेंट हो जाएगी ना। तो अभी 153 का जो मिनिमम टैक्स है उसका इससे क्या रिलेशन है? से कोई रिलेशन नहीं है। 153, अच्छा मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट है आपको क्या, ये हम बात कर रहे हैं? नहीं। अच्छा जी, टैक्स में जी 3 रिजीम्स हैं पाकिस्तान के टैक्स में, नॉर्मल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम।
नॉर्मल टैक्स रिजीम ये कहती है कि आप हिसाब करेंगे आमदनी ख़र्चों का, ठीक है, उसके मुताबिक अगर आपकी आमदनी हुई है जितना टैक्स बनता है वो साल बाद आप रिटर्न दे रहे हैं, उसमें पे किया, अगर कोई आपने पहले दिया वो कट जाएगा, नाइस एंड ईजी। फाइनल टैक्स रिजीम कहती है कि जो आपका टैक्स डिडक्ट हो गया वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, कोई आपसे हिसाब किताब नहीं चाहिए, कोई आपका ऑडिट नहीं करना, आप मौजे करें, ठीक है। जैसे आपने कंपनी की बात की थी IT एक्सपोर्ट बिज़नेस की, कि बाहर से आ रहा है 0.25% उसका डिडक्ट हो रहा है, फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज, एंड ऑफ स्टोरी, एटलीस्ट फॉर नाउ। हर साल ये बाय द वे चेंज होते हैं, कोई गारंटी नहीं है अगले साल क्या। अच्छा, एक तीसरा बड़े मज़े का है विच इज़ द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, उसको कहते हैं मिनिमम टैक्स रिजीम। वो कहते हैं ये तो जो आपका कटर है ये मिनिमम है, ठीक है, अब अगर इससे ऊपर आपका साल में कुछ गया तो वो आप हमें पे करेंगे। अच्छा, मिनिमम टैक्स रिजीम जो है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इम्पेक्ट करती है उनको जो एज बिज़नेस कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई IT बिज़नेस रन कर रहा है, कोई इस तरह की चीज़ कर रहा है, आपके एंड में वो इतना कोई मेजर इशू नहीं होता, क्योंकि आई एम श्योर आप में से जो भी रिटर्न ऑलरेडी फाइल करा रहे हैं, साल बाद आपकी जो जाती है आपकी टैक्स लाइबिलिटी इतनी ही डिक्लेयर होती है जो आपने पे की है, तो वो आपका इशू नहीं होता। हाँ, अगर आप में से कोई साइड लाइन पे कोई और IT बिज़नेस या कोई और शुरू करने का इरादा करे तो उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा, अगर कोई ऐसा इरादा हुआ तो आप हमें कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है जी। कोई अगर अब साइड पे IT बिज़नेस ही रन कर ले, लाजमी नहीं कि कंपनी करे, लोकल अलग से कोई बिज़नेस शुरू कर दें IT का, या कोई और ऐसी चीज़ शुरू कर दें, इससे हट के टीचर है दैट इज़ फाइन, डिफरेंट इनकम स्ट्रीम, रेंटल है दैट इज़ फाइन, दैट इज़ डिफरेंट इनकम स्ट्रीम। लेकिन अगर कोई आप IT का इस तरह का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं लोकली, जैसे भाई के दिल में है कि मैंने टैक्स बचाना है, मे बी मैं मतलब कोई इसमें हट की बात नहीं, ख्वाहिश हो सकती है। एडजस्टेबल टैक्स है वो, मिनिमम रिजीम में नहीं है, और वो डिफरेंट इनकम स्ट्रीम है आपकी। अच्छा, मिनिमम जो जा रहा है ना वो मिनिमम के साथ जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अच्छा, कॉन्सेप्चुअली इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपके पास जो टैक्स रेट कार्ड आएगा, चलें हम 2-4 दिन और ले लेते हैं, उसमें हम ये भी डाल देंगे साइड पे कि कौन सा मिनिमम है, वो आपको आइडेंटिफाई होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, मिनिमम के हवाले से आपको सिर्फ ये इशू है, यहाँ पे तो आप कोई बिज़नेस रन नहीं कर रहे, आपको जो सैलरी आ रही है, मतलब पेमेंट्स आ रही है, सैलरी नहीं कहना चाहिए, वो ये डिक्लेयर कर रहे हैं, वहाँ से क्रॉस चेक हो रही है, वही आप डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स उतना ही बनता है, आप दे रहे हैं, सुकून है आपको, ठीक है। लेट से आपका कल को मूड बनता है, आप कोई IT का ख़ुद से बिज़नेस शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उसमें आप प्रोविज़न कर रहे हैं जो मिनिमम में फॉल कर रही है, तो फिर आपको क्या करना होगा, साल बाद आप अपना हिसाब किताब बनाएंगे, ठीक है, क्या आपके खर्चे, क्या आपकी आमदनी हुई, उसको आप जस्टिफाई करेंगे। अगर जो आपका नेट प्रॉफिट है, नेट आमदनी है, वो उससे ज़्यादा हो गया है जितना आपके टैक्स डिडक्शन की ग्रॉस अमाउंट बनती है, तो आपको इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो आपने दिया है ना, ये कम अज़ कम है, इसमें से आपको वापस नहीं मिलना। मिसाल के तौर पे उस बिज़नेस का अगर साल बाद हिसाब किताब हो कि आपको तो नुकसान हो गया और आप कहें आपने मेरा इतना टैक्स काटा था, अब मुझे वापस कर दें, वो नहीं मिलना आपको, वो नॉर्मल में मिलेगा, मिनिमम में नहीं मिलेगा, फ़ाइनल में भी नहीं मिलेगा। लेकिन फ़ाइनल में एटलीस्ट ये बेनिफिट है कि फ़ाइनल में कुछ और लिया भी नहीं जाएगा, जो आपने दे दिया वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज है। मिनिमम में फ्लिप साइड ये है कि जो आपने दे दिया वो तो वापस नहीं मिल सकता, वो तो आप भूल जाएं। हाँ, जो आपका अगर कुछ बनता हुआ तो वो आपने देना है, लेकिन आपका क्योंकि इंटरेस्ट है, आपको यहाँ एक मज़े की बात बता देता हूँ, ये तो है नॉर्मल लॉ कि मिनिमम में आपको रिफ़ंड नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ ऐसी सूरतें हैं जिसमें मिनिमम में इस कानून के बावजूद आप रिफ़ंड ले सकते हैं, लेकिन फ़ाइट करना पड़ेगा। कानून हुआ एंग्लो सेक्शन लॉ वेयर देयर इज़ ऑलवेज अ वे, ठीक है। अच्छा, ये है जो हमने बात की है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। देखें, तमाम कानून जो हैं वो अपनी पावर कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं, जो आपका सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत पावरफुल एरिया है, अगर कोई भी लॉ
आप साबित कर सकें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविज़न से मुतसादिम है, अगेंस्ट है, तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है। फिर इसके बाद ये कानून होता है बेसिक, जो हम टैक्स के हवाले से बात करते हैं ना, ये आपके ऑर्डिनेंसेस, आपके एक्ट, रूल्स, ये फर्स्ट लेयर है, ये बड़ी बेसिक चीज़ है, ठीक है। इसके बाद आपके आ जाते हैं केस लॉस, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी ग्राउंड रियलिटीज़, ये सारी चीज़ें मिल के ना एक टैक्स प्रैक्टिस बनती हैं, ठीक है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम एक लेमैन टर्म में बड़ी आइसोलेशन में इस बेसिक लेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिक लेयर एंड नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑन अ लाइटर नोट बताता हूँ कि अब तो मेरा स्टाफ FBR जाता है ना, तो हम उन्हें एक इंस्ट्रक्शन दी होती है कि आपने कंसर्न्ड ऑफिसर से एक ही रिक्वेस्ट करनी है कि जी आपका जो दिल है, हमने आपको मेरिट पे केस बता दिया, आर्ग्यू कर दिया, रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया, अनलेस कि किसी क्लाइंट की ये रिक्वेस्ट हो कि जी FBR में ही रिजॉल्व कराएं, हम वक्त नहीं ज़ाया करते। हम उन्हें कहते हैं आपको जो अब समझ आ रहा है ना, आप काइंडली हमें वो ऑर्डर दे दें, बस उसको डिले ना करें, क्योंकि जहाँ पे आपकी कलम की ताकत ख़त्म होती है वो क्या है, ऑर्डर इशुएंस है। हमारी तो प्ले ग्राउंड ही उसके बाद शुरू होती है, ठीक है। आपने जो ऑर्डर देना है वो हरफ आखिर नहीं है, जब आपने वो ऑर्डर दे देना है तो असल तो हमने फिर उसके बाद शुरू करना है, ठीक है। तो वो हमने कहाँ पे शुरू करना है, उसमें वो बेस लाइन भी है और वो ऊपर की हायरार्कीज़ भी है, ठीक है। और सर ये जो कैटेगरीज आपने बताई हैं, मिनिमल, मैक्सिमम, इनको हम कहते हैं रिजीम, टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम। और ये जो हैं इसमें वो खुद फॉलो करते हैं, प्री डिफाइंड है, मतलब हाँ, प्री डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल आपका जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है, आपका जो एरिया है, ये मिनिमम टैक्स में फॉल कर रहा है, ये प्री डिफाइंड है। इसी तरह जो कंपनी का आपने रेफ़र किया था एक्सपोर्ट के ऊपर 0.25 जो डिडक्ट हो रहा है, वो भी प्री डिफाइंड है कि वो फॉल करता है फाइनल टैक्स रिजीम में। अब फॉर एग्जांपल बेशुमार कैटेगरीज, अब आई डोंट नो आप में से किसी ने अगर कभी किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो डिविडेंड पे जो आपको आ रहा होता है, टैक्स डिडक्ट हो रहा है, वो फाइनल टैक्स रिजीम में। अच्छा, सैलरी पे जो है आपका एडजस्टेबल, तो ये प्री डिफाइंड है। और आपको हम जो रेट कार्ड भेजेंगे ना, उसमें हम ये मेंशन कर देंगे, तो वो आपको हर कैटेगरी में पता लग रहा होगा ये मिनिमम है, फाइनल है, ये नॉर्मल है। रेट कार्ड नहीं, एक आपको आ जाएगा 1-2 सफ़े की एक फ़ाइल, उसके ऊपर एक समरी मौजूद होगी, आप जो कॉमन काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बेचने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तक, उस पर क्या टैक्स कट रहा है, अगर आप किस स्लैब में हैं, और वो मिनिमम है, नॉर्मल है या फाइनल है। तो इनके केस में तो फिर ये इनकी फाइनल लायबिलिटी ही होगी ना, फॉल तो ये मिनिमम। आप उसको इन एसेंस कह सकते हैं, लेकिन हमारा एक फ़र्क ये है ना कि हम क्योंकि प्रोफेशनल है, हम वो टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ कर सकते। तो आप ये कह सकते हैं कि इनके केस में जो इन्होंने अभी इंफॉर्मेशन दी है, इनकी कोई और फर्दर उस तरह की टेंशन नहीं है एडिशनल। सिर्फ 2 लोगों की इनकम स्ट्रीम है, लेकिन वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसका इशू नहीं है। ये तो शायद कमिश्नर डिसाइड करता है मिनिमम अगर टैक्स है कि इसको कितना एक्सीड करना है इससे 3%। अच्छा, वो नॉर्मली जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, दे गेट द हार्शेस्ट ट्रीटमेंट इन दैट सेंस, इनके एंड पे कोई टेंशन नहीं है। जब वो बड़ा कोई सीरियसली मटेरियलिज्म क्रॉस करेगा ना, जब माशाल्लाह ये एक बंदा कोई 5-10 करोड़ क्रॉस करना शुरू करेगा, फिर वो वक्त होगा जब हम थोड़ा सा कंसिडर करेंगे। एनुअली के ग्रॉस, अच्छा एक सेकेंड देखें, एक चीज़ समझ लें, वो बाउंड कहाँ पे हैं। आईटी सेक्टर इस वक्त टैक्सेशन के हवाले से उस तरह प्राइमरी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑलरेडी शोर मच गया हुआ है 0.25 पे, क्योंकि एक हिस्ट्री चली आ रही थी पिछले 10-12 साल से, टोटल टैक्स एग्जेम्पशन हर गवर्नमेंट दे रही थी। आईटी सेक्टर को उसका बहरहाल थोड़ा सा सेटबैक भी हुआ है। ऑलरेडी इकनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, ठीक है। ये वो सेक्टर है जो नौकरियां भी कंटेन कर रहा है, जनरेट भी कर रहा है, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी भी दे रहा है। यूथ स्पेशली जो पढ़ा लिखा यूथ है वो फ्रीलांसिंग भी कर रहा है, तो इसके ऊपर उस तरह नहीं है। मैंने आपको बताया है कि जो फोकस होता है ना, बोर्ड लेवल पे ये पॉलिसीज़ तैयार होती हैं और कम्युनिकेट होती हैं कमिश्नर्स को। अच्छा,
जैसे हमने शुरू में उस्मान बात की है, एक है जो बाय द बुक है, एक है जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, ठीक है। बाय द बुक किसी भी शख्स का ऑडिट हो सकता है। आपको कितना अर्सा हो गया जॉब करते हैं अलाइड में? कभी खुला आपका ऑडिट? ठीक है, कोई प्रोहिबिशन नहीं है। बाय द बुक, बाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपका खुल सकता है, लेकिन आप अपने सर्कल में किसी भी सैलरीड बंदे से बात कर लो, पिछले 10 साल में किसी का सैलरी बेसिस पे नहीं खुला होगा। वैसे किसी ने दुश्मनी में उसकी कंप्लेन कर दी, झूठी सच्ची, उसने कोई और साइड कारोबार शुरू कर दिया, किसी और वजह से खुल गया, सैलरी बेसिस पे नहीं खुलेगा। अच्छा, ये पैरामीटर्स वो हैं जैसे मैंने शुरू में बताया, जो FPR डिस्क्लोज नहीं करता है वो उसको हिडन रखता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारे लिंकेजेस भी हैं, कॉन्टेक्ट्स भी हैं, वी गेट टू नो दैट, वी गेट टू नो द आइडिया, तो इनके लेवल पे वो इशू नहीं है।